اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحمید الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ جل مجدہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب العزت نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کے قابل سمجھا۔ آج اسلام میں ایک تاریخی دن ہے کہ اسلام کی ایک بہت عظیم ہستی جو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، سیدہ نساء اہل جنہ اور سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آج یوم وصال ہے۔ کون سیدہ شہزادی کونین ملکہ دارین ام الحسنین سیدہ نساء العالمین رہتے قلب و جان مصطفیٰ رونق خاندان مرتضیٰ۔ میرے حضور کو فرمایا گیا، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ میرے بندوں کو یہ پیغام دے دیں کہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، جو تمہیں خدا کا پیغام پہنچاتا ہوں، جو تمہیں دین حق بتاتا ہوں، صحیح راستے پر چلاتا ہوں، اس کام کے عوض میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو میرے قریب ہے تم اس سے محبت کرو۔ گویا اللہ چاہتا ہے جو تم پر ایمان لائے تو کوئی بھی ایسا نہ ہو جو تیرے گھر والوں سے پیار نہ کرے، ایمان لائے اور ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے گھر والوں سے پیار نہ کرے۔ سیدہ کہتے ہیں سردار کو، فاطمہ فتمن سے مشتق ہے، فتمن کا معنی ہے ڈھال، ڈھال۔ تو یہ نام کیوں رکھا؟ کیونکہ آپ سے عقیدت رکھنے والوں کے لیے آپ اور آپ کی اولاد جہنم کے راستے میں ڈھال بن جائے گی۔ میرے حضور نے فرمایا نا، مجھ سے، میری بیٹی فاطمہ سے، میرے حسن حسین سے محبت کرنے والے قیامت کے دن ہمارے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہوں گے۔ اور پھر ایک روایت حضور نے فرمایا، میں شجر نبوت ہوں، میری بیٹی اس شجر نبوت کی ٹہنی ہے، میرا علی اس شجر نبوت کا پھول ہے، میرے حسن و حسین اس شجر نبوت کے پھل ہیں، اور ہم سے محبت کرنے والے اس شجر نبوت کے پتے ہیں۔ یوں یہ درخت مکمل ہوتا ہے اور اسی شان کے ساتھ یہ درخت جنت میں جائے گا۔ تو فتمن مین ڈھال، آپ ڈھال بنے گی، اور آپ کا لقب ہے بطول۔ بطول بطل سے، بطل کا معنی کٹ جانا، لا تعلق ہو جانا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ رب کو ایسے یاد کرتے ہیں کہ ہر چیز سے پھر وہ کٹ ہو جاتے ہیں، جداگانہ حیثیت ان کی ہو جاتی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا لقب بطول اس لیے رکھا کہ آپ جب خدا کی بارگاہ میں آتی تھی دنیا اور مافیہ سے کٹ جاتی تھی، پھر ساری ساری رات سجدے میں گزر جاتی تو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی۔ زہرا آپ کا بھی لقب ہے، زہرا بھی لقب ہے آپ کا۔ زہرا کہتے ہیں پھول کو،
तो हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा सईदा फातिमा ज़हरा के विसाल कर जाने के बाद कि फातिमा कैसी थी। फरमाया वो गुलशन दुनिया का ऐसा फूल थी जिनके जाने के बाद भी अभी तक खुशबू उनकी बाकी, तो इसलिए आपको ज़हरा कहते हैं। हम बैठे हों, कोई हमारा उस्ताद आ जाए तो हम उसकी ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं, आलम आ जाए तो उसकी ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं, मुरीद का पीर आ जाए तो मुरीद पीर की ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं। वो अपने पीर और अपने उस्ताद और अपने से बड़े आलम के लिए खड़े होने पर फख्र महसूस करते हैं। वो उससे आगे बड़े और उस्ताद दर उस्ताद के लिए खड़े होने पर फख्र महसूस करते हैं। गोया वली अपने से बड़ी वली के लिए खड़ा होता है, कुतब के लिए खड़ा होता है, गौस के लिए खड़ा होता है, फिर सारे वली गौस आजम के लिए खड़े होने पर एजाज समझते हैं। फिर उधर तबा ताबी ताबी के लिए खड़े होना फख्र महसूस करता है, ताबी सहाबी के लिए खड़े होने पे फख्र करता है, सहाबी नबी के लिए खड़े होने पर फख्र करता है, और सारे नबी हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े होने पर फख्र महसूस करते हैं। तो गोया कायनात के आम फर्द से लेकर नबी तक हर कोई ये फख्र महसूस करता है कि हम मोहम्मद के लिए खड़े हों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुर्बान जाए सैयदा फातिमा ज़हरा, सारी कायनात मुस्तफ़ा के लिए खड़ी होती है, मेरा मुस्तफ़ा तेरे लिए खड़ा होता है। हदीस पाक है, जब भी सैयदा फातिमा ज़हरा आती तो मेरे नबी उनके एहतराम के लिए खड़े हो जाते, अपनी मसनद पर बिठाते, उनके हाथों को बोसा देते, पेशानी को बोसा देते। और आज के दौर में ऐसा बच्चियों से प्यार करना इतना अजीब नहीं लगेगा। उस दौर में जब बच्ची को अपने साथ मंसूब करना लोग मायूब समझते थे, गुनाह समझते थे, बच्चियों के साथ प्यार करना, बच्चियों को अपने साथ मंसूब करना, उस दौर में मेरे नबी मुकर्रम ने ऐसा प्यार करके दिखाया कि कायनात आज भी उस जैसा प्यार करने से कासर है, उस जैसा प्यार करने से कासर है। तो मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्यार किया वो आज भी ज़रबुल मिसल है। और कोई आज बेटियों से प्यार करता है तो समझिए हजूर की सुन्नत पर अमल कर रहा है, प्यार का सवाब अलग मिलेगा, सुन्नत मुस्तफ़ा का सवाब अलग मिलेगा। तो आप सैयदा भी हैं, आप तहरा भी हैं, आप रादियत मर्दिया भी हैं, आप जाहिदा भी हैं, आप आबदा भी हैं, आप कायनात की अच्छी बीवी भी हैं, आप कायनात की अच्छी बेटी भी हैं, आप कायनात की अच्छी माँ भी हैं। तो ये सारे रिश्ते जो है वो आप सब पे टॉप पे नजर आती हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मवाजना किया कि मरियम को एक निस्बत है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है। वो कहते हैं मरियम अज यक निस्बत ए अजीज अज मिना निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, अज से निस्बत हजरत मरियम को एक निस्बत हासिल है कि ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, और हजरत सैयदा ज़हरा को 3 निस्बतें हासिल हैं। कौन सी? नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन, वो इमामुल अव्वलीन आखिरीन, जो सारी कायनात के आने वालों के भी इमाम है, जाने वालों के भी इमाम है, आप उसकी नूरे चश्म है, ये निस्बत। और फिर ज़ौजाए मुर्तज़ा मुश्किल कुशा, ये अल्लामा इकबाल ने मुश्किल कुशा लिखा हजरत अली मुर्तज़ा को, ज़ौजाए मुर्तज़ा मुश्किल कुशा। और दूसरी निस्बत है कि आप मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा की ज़ौजा है। और तीसरी निस्बत मादरे आ मरकज़ प्रकारे इश्क, मादरे आ काफिला सालारे इश्क, और उन 2 नौजवान हसन हुसैन जो सलारे इश्क हैं काफिला के, तो उनकी आप वालदा माजिदा है। तो ये 3 निस्बतें ऐसी हैं कि कायनात में ऐसी निस्बतें किसी खातून को नहीं मिली जो सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मिली। फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला
अना फरमाती हैं कि मैंने किसी को हजूर के इतने मुशाबे नहीं पाया जितना फातिमा ज़हरा को पाया है। आप चलती थी तो ऐसा लगता था कि हजूर चल रहे हैं, आप बोलती थी तो ऐसा लगता था हजूर बोल रहे हैं, आप चाल में, ढाल में, गुफ्तार में मुशाबे थी। गोया यूं कह लें कि जाते दो थी, कमाल एक था। जाते दो थी, जमाल एक था। जाते दो थी, औलाद एक थी। हजूर भी उनको बेटा कहते थे और हजूर की जो औलाद है और नस्ल है वो उन्हीं से चली है। ये भी किसी नबी की बेटी को ये एजाज हासिल नहीं है कि उसके बाप की नस्ल, उसके बतन से उसकी बाप की नस्ल चली हो। किसी नबी की बेटी को ये एजाज हासिल नहीं। ये सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा का खासा है कि आपके बतन से आपकी नस्ल को हजूर ने अपनी नस्ल करार दिया। तो अब सादात जितने भी हैं वो हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, वो सैयदा फातिमा ज़हरा से। ना कि बेटी से जो मनसूब होते हैं उसको बाप अपने तरफ मनसूब नहीं करता। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी जानब मनसूब किया। और फिर जब मुस्तदरक में है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बरी हुई रवायत है कि जब कल क़यामत का दिन होगा तो एक निदा करने वाला निदा करेगा कि तातियु रऊसकुम, लोगों अपने सरों को नीचे कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा का गुजर होने वाला है। 70,000 हूरों के जुर्मट में सैयदा निसाए अहले जन्नह को ले जाया जाएगा। देखे ना, प्रोटोकॉल तो बनता है ना। फिर आप जन्नत की सरदार जो है, जन्नत की आम तो जन्नत ही नहीं ना जन्नत में जा रहा, ये सैयदा निसाए अहले जन्नह जा रही है, यानी जन्नत की औरतों की सरदार जा रही है। तो 70,000 हुरे इस्तकबाल के लिए आई हैं और वो सैयदा फातिमा ज़हरा को सब्ज लिबास में मलबूस करके जन्नत में लेकर जा रही है। तो बड़ा प्यारा कलाम है, चंद अशार पर मुश्तमिल। कहते हमारा दीनो ईमा है जनाबे सैयदा ज़हरा, हमारा दीनो ईमा है जनाबे सैयदा ज़हरा, अली भी तुझ पे नाजा है जनाबे सैयदा ज़हरा, नबी की पाक बेटी का हया हम सब पे वाजिब है, नबी की पाक बेटी का हया हम सब पे वाजिब है, नबी की जाने जाना है जनाबे सैयदा ज़हरा। और रकिया ओ ज़ैनबो कलसूम, रकिया ओ ज़ैनबो कलसूम जिसकी पाक बहनें हैं, रकिया ओ ज़ैनबो कलसूम जिसकी पाक बहनें हैं, वो इन सब में नुमाया है जनाबे सैयदा ज़हरा। और वो जिसके पास जोड़ा खुदा ने खल्द से भेजा, खल्द जन्नत, वो जिसके पास जोड़ा खुदा ने खल्द से भेजा, वो जिस पे रब का एहसान है जनाबे सैयदा ज़हरा। उनको सलाम पेश करते हैं, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं और ये दुआ बिलखुसूस करते हैं कि हमारी माओ बहनों बेटियों को सैयदा फातिमा ज़हरा के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, उनका साया अता फरमा, उनकी सोहबत और संगत अता फरमा, उनकी बांदियों में उनका शुमार फरमा, जन्नत में उनका दीदार अता फरमा। जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गईं, जिनके रिश्तेदार चले गए, उनको सैयदा फातिमा ज़हरा और आपकी औलाद की संगत अता हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।